سب سے پہلے صحت کے حوالے سے اہم خبر، عوام کو مفت علاج ملے گا، مفت ادویات نہیں۔ پنجاب میں کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی۔ متعلقہ بجٹ میں تقریباً 50% کٹوتی کر لی گئی۔ یہ کٹوتی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب پنجاب حکومت قومی صحت کارڈ کے ذریعے مریضوں کو مفت علاج دینے کا اعلان کر رہی ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے ہزاروں کینسر میں مبتلا مریضوں کے لیے مختص بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی ہے۔ محکمہ بیت المال نے رواں مالی سال میں کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کیے تھے، لیکن 35 کروڑ کی کٹوتی کر دی گئی، جس کے بعد مریضوں کو کینسر کی مفت کیمو تھراپی کی سہولت ختم ہو گئی ہے۔ محکمہ بیت المال کے ذریعے سے مفت ادویات نہ ملنے کے باعث چھاتی کے سرطان میں مبتلا خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف لاہور میاں نوید سے۔ میاں نوید، بتائیے گا جو صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے یہ اس کی وجہ سے کٹوتی کی گئی ہے؟ میاں نوید، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ آپ کو بتائیں کہ عوام کو مفت علاج ملے گا، مفت ادویات نہیں۔ پنجاب میں کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ متعلقہ بجٹ میں تقریباً 50% کٹوتی کر لی گئی۔ یہ کٹوتی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب پنجاب حکومت قومی صحت کارڈ کے ذریعے مریضوں کو مفت علاج دینے کا اعلان کر رہی ہے۔ میاں نوید سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ میاں نوید، بتائے گا کیا صحت کارڈ کی وجہ سے کٹوتی کی گئی ہے؟ جی بالکل، ابھی تک تو یہ صورتحال واضح نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ 70 کروڑ جو ہے رواں مالی سال میں یہ مختص کیا گیا تھا، لیکن اس میں سے 35 کروڑ جو ہے وہ کٹوتی کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے بیت المال جو ہے وہ کینسر کے جو مریض تھے ان کو جو ہے مفت ادویات فراہم کرتا تھا، اس کے بعد ان کی کیمو تھراپی کی جاتی تھی۔ اس بار جو ہے وہ لاہور کے 2 اسپتال، جناح اسپتال اور نیو اسپتال، دونوں کے جو مریض ہے جب اس حوالے سے بیت المال سے رابطہ کرتے تو ان کے جو ہے وہ تھرو بذریعہ جو ان کی جو ان کا جو فارم ہوتا ہے وہ وہاں پر نہیں لیا جاتا۔ اس حوالے سے کئی مریض وہاں پر گئے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کا فارم نہیں لیا گیا۔ اب وہ مریض خود اپنے طور پر یہاں ہسپتال جامعہ ان کو لوکل تیز ادویات کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ ادویات فراہم کر رہی ہے۔ اس حوالے سے متعدد ایسے مریض ہے جو سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے مریض ہے، جو خواتین بھی اس میں شامل ہے جو چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہوتی ہے اور ان کی کیمو تھراپی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سے کیمو تھراپی کی پرائس کی بات کریں، تقریباً 30,000 سے زائد جو ہے وہ ادویات، 30,000 سے زائد کی ادویات خریدی جاتی ہے۔ ایک دفعہ کی کیمو تھراپی ہوتی ہے اور کیمو تھراپی بہت ضروری ہے کینسر کے مریضوں کے لیے۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے کیمو تھراپی کی جاتی ہے، لیکن جو ہے بجٹ میں کٹوتی کی گئی ہے، تقریباً 70 کروڑ میں سے 35 کروڑ کٹ کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحت کارڈ کی وجہ سے کاٹے گئے ہیں یا اپنے طور پر بیت المال نے کاٹے ہیں، لیکن یہ پیسے کاٹ لیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے میاں نوید، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب میں کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ متعلقہ بجٹ میں تقریباً 50% کٹوتی کر دی گئی ہے۔ 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے کینسر کے مریضوں کے لیے، جن میں سے 35 کروڑ کی کٹوتی کی گئی ہے، اور یہ کٹوتی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب پنجاب حکومت قومی صحت کارڈ کے ذریعے مریضوں کو مفت علاج دینے کا اعلان کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب پنجاب کے ہزاروں کینسر میں مبتلا مریضوں کے لیے مختص بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی ہے۔ محکمہ بیت المال نے رواں مالی سال میں کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کیے تھے، لیکن 35 کروڑ کی کٹوتی کر لی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کرونا کی شدت میں بخار کی گولی نایاب ہو گئی۔ بخار کی گولی کا بلیک میں ملنا انتہائی شرمناک ہے۔ سیاسی بلیک مارکیٹنگ سے آنے والی حکومت میں بخار کی گولی سے LNG اور کھاد تک ہر چیز کی چور بازاری جاری ہے۔ عمران صاحب نے ملک سے گیس غائب کر دی اور اپنے مافیاز کی جیبیں بھری۔ اصل میں تو حکومت کو فارغ ہونا چاہیے جس نے عوام کی خوشحالی، روزگار، کاروبار سب کچھ غائب کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں تینوں صوبوں میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کو صحت انصاف کارڈ دے رہی ہیں، لیکن سندھ حکومت عوام کو ریلیف دینے کو تیار نہیں۔ سندھ میں پرچی مافیا کا راج ہے، صوبے کو 13 سال سے ڈاکو چلا رہے ہیں۔ اسد عمر نے مزید کہا بلدیاتی قانون کے خلاف پورے سندھ میں تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ 2023 میں سندھ میں PTI کی حکومت قائم ہوگی۔ اسد عمر نے کراچی کے مسائل تو گنوا دیے، اسلام آباد میں ان کے اپنے حلقے کی خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیے محمد اویس کی رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر کے حلقہ NH54 میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں۔ یہاں کی کیا حالت ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
असद उमर को हमने यहाँ से कामयाब करवाया, तो अब ये उसका हक नहीं है कि ये रोड ठीक करे। बच्चे हमारे स्कूलों में जाते हैं, शिफ्टों वाले गाड़ियों वालों ने जवाब दे दिया कि आपका रोड सही नहीं है जी, हम बच्चों को नहीं लेके जा सकते। तब्दीली सरकार के 3 साल गुजरने के बाद भी सेक्टर G12 के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ मोहम्मद अवैस, न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म और चारों वज़राए आला ने तमाम इख्तियारात पर कब्जा कर रखा है। हम इख्तियारात अवाम को मुंतकिल करेंगे। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज का एहतजाज जुल्म के खात्मे और मजलूम को उनका हक दिलाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। घरों में बैठे रहने वाले जालिम हुकूमत के साथी कहलाए जाएंगे। सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत का सफर जारी रखे हुए है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहते हैं तरक्याती कामों पर तेजी से काम जारी है। फूड स्ट्रीट की खूबसूरती मजीद बढ़ाने के लिए पार्क्स और खेल के मैदान बनाए जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब ने बताया, माजी में वजीर मेंशन के अतराफ पानी जमा होने पर मुखालिफिन तस्वीर लेते थे, अब क्यों नहीं जाते? क्योंकि अब वहाँ पानी जमा नहीं होता। कराची के मुख्तलिफ गोठों को जाने वाली सड़कों की भी तामीरें नौ हो रही है। हुकूमतें अपने बजट के मुताबिक काम करती हैं। फूड स्ट्रीट को और उसके साथ 4 मुल्हिका पार्क्स को, पब्लिक प्लेग्राउंड्स काम करने का, डेवलप करने का काम स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह इसी साल में। हमारे यहाँ जब कोई गलत चीज़ होती है तो सारे लोग आके तस्वीरें खींचते हैं, बुरा भला कहते हैं। आपको याद होगा माजी में वजीर मेंशन के अतराफ में पानी जमा होता था बारिशों में। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वजीर मेंशन के एरिया में, कपड़ा मार्केट के एरिया में तमाम ड्रेनेज को, सेवरेज को रीडू किया, उसकी असरनो तामीर की। पीपल्स पार्टी आज सियाल शरीफ में सियासी पावर शो करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनों का जोश व खरोश अरूज पर है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गोराया। मैं इस वक्त पंडाल में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कारकुनों की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है और पंडाल इस वक्त मुकम्मल भर चुका है और ख़वातीन और मर्द जो हैं वो अपने कायद के इंतज़ार में बैठे हैं। बस सिर्फ अब उन्हें यही इंतज़ार है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आए और हम उनका खिताब सुने। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और दीगर जो अहम जो क़ियादत है वो उनके साथ है। इसके साथ ख़वातीन में बड़ा जोश जज्बा पाया जा रहा है और वो पार्टी के तरानों पर रक्स भी कर रहे हैं। इस यहाँ पर जो स्टेज है वो 40 फुट चौड़ा और 60 फुट लंबा बनाया गया है। मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। जी, शरीफ खानदान की डॉक्ट्राइन लूट मार करना और माल बनाना है। वजीर मुमलिकत बराए तलात फरूख हबीब कहते हैं, ये चाहते हैं लूट मार भी करते रहें और इनसे पूछा भी ना जाए। फरूख हबीब ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को भी आड़े हाथों लिया। कहा, राना सनाउल्लाह ने जजिस का घेराव करने की धमकी दी। उनका एहतसाब किया जाए तो ये अदलिया को धमकाने लगते हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा, इस ऑपोजिशन के होते हुए हुकूमत को किसी चीज़ से खतरा नहीं। को नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ के जो नैब का केस है, जो टीटीज का केस है, जो लाहौर की एहतसाब अदालत में चल रहा है, 7.5 अरब रुपए का टीटीओ का केस है। उन्होंने PHA का, गुजरात शहर का ब्यूटिफिकेशन का ओहदा बेचा है, किसी को टिकटें बेची हैं, किसी को ठेके दिए हैं। वो मंजूर पापड़ वाला जो कभी लंदन ख्वाब में भी नहीं गया होगा, उससे नाम की लंदन से टीटियां आ रही हैं सलमान शहबाज के अकाउंट में, हमजा शहबाज के अकाउंट में। साबका वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने जो है वो बयान दिया है कि अगर कोई अदालत शहबाज शरीफ को सजा देगी तो जजेस का घेराव करेंगे, अदालतों का घेराव करेंगे। उधर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तरक्की के जारी सफ़र में किसी को हायल नहीं होने देंगे। बदकिस्मती से PDM ने कौमी मफादात को बालाए ताक रखा हुआ है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, फरोग नसीम का सवाल अहम है। अगर जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। उन्होंने ट्वीट में कहा, अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की ज़रूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हलफ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कैनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि जस्टिन ट्रूडो का बर वक्त इकदाम इस मुतालबे की हिमायत है जो वो दोहराते रहे हैं। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जस्टिन ट्रूडो के बयान का खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा कि कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से जो खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है ये खुश आइंद है। ये उनके उस बयान की हिमायत करता है जो कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर काम करने के हवाले से उन्होंने कहा था और इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज़ करना होगा। इस्लामोफोबिया किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए हुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पैगाम में जस्टिन ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया की मजम्मत करते हुए कहा, हमें इस नफरत को खत्म करने और कनाडा में रहने वाले मुसलमानों के लिए अपनी कम्युनिटी को महफूज बनाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ कैनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम किया। ट्वीट में कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म का इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करना खुश आइंद, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज करना होगा। जस्टिन ट्रूडो का बर वक्त इकदाम इस मुतालबे की हिमायत है जो वो दोहराते रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें रंग ला रही हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम आलम अब आवाज़ उठा रहा है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने ट्वीट किया, वज़ीर आज़म के इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाने के असरात आना शुरू हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी और बालाई सिंध के इलाकों में धुंध छाई रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गिलगित और बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। लेह -15, अस्तोर -12, गोप्स -10 दर्जा हरारत के साथ सरतरीन मकामात रहे। मरी में सयाहों की मखसूस औकात में आमद पर पाबंदी के खात्मे के बाद सयाहों की बड़ी तादाद मलिका कोहसार पहुंच गई। सयाह खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी मॉल रोड पर मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जानेंगे। जी ताज बुखारी। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं निगतजार पार्क में, जहाँ पे आज छुट्टी का दिन है और सयाहों की भी अच्छी खासी तादाद जो है फैमिलीज़ की वो इस वक्त मरी में है। अगर बात की जाए मौसम की तो इस वक्त भी आंख मचोली लगी हुई है, चूँकि बादलों ने मरी को अपने घेरे में ले रखा है और कभी धूप निकलती है, कभी बादल जो है वो छा जाते हैं। तमाम महकमों के सरबराह जो है वो मौजूद हैं और आप खुदा ना खास्ता किसी भी प्रॉब्लम में आप 15 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर के ऊपर इमदादी कार्रवाई जो है वो आपके लिए की जा सकती है। और इस वीकेंड की वजह से इस वक्त जो है मरी के मुख्तलिफ मुकामात पे जहाँ पे लोग जो हैं वो आए हुए हैं, जिसमें न्यू मरी, पत्रियाठा और इसी तरीके से कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और गिलियात के रास्ते भी खुले हैं और सियाह अच्छी खासी तादाद में इस वक्त मरी में मौजूद हैं और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं।